Welcome to the lecture 11 of Software Design and Architecture. In previous lecture, we had discussed Blackboard architecture, which is a variation of central store in shared data software architecture. In today's lecture, we will start a new topic, that is middleware architecture. We will cover its introduction and two middleware technologies, which are RPC and Corba. There might be a lot of questions coming to your mind that what the middleware is, why we use middleware. So here is answer of this question, why we use middleware. As you can see on your left side that 5 applications need 10 number of connectors to interact with each other. If we increase the number of applications and add 5 more applications to the previous example, now the number of applications become 10, and if we want to integrate these applications with each other, we need 45 connectors. Isn't it the number of connectors 4 times more than the number of applications? To solve the integration issue of different applications, middleware was introduced. So here is the introduction of middleware. We will get to know that what exactly the middleware is. First of all, I would like to discuss the figure. Distributed applications are present at different places, different areas, different machines, and for the operating system, you all know that it is an interface between user and hardware. Middleware sits between the distributed applications and operating system communications. जैसे कि आप देख रहे हो कि मिडलवेयर के नाम से ही पता चलता है कि ये कुछ ऐसी एप्लीकेशन है या कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जो कि 2 लेयर्स के मिडल में काम कर रहा है. So here it is written that it is a layer between operating system and distributed applications. It hides the complexity and heterogeneity of distributed system. इसका मतलब क्या है कि मिडलवेयर इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया गया था ताकि किसी भी सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस किया जा सके और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में जितनी भी हेट्रोजेनिटी है उसको कम किया जाए, उसे होमोजेनिटी में तब्दील किया जा सके. Let's say there are different companies such as Microsoft, Apple, Windows. They are all making applications for their targeted users. अब मैं एक यूज़र हूँ, क्या मैं एप्पल की कोई एप्लीकेशन को विंडोज़ पे यूज़ कर सकती हूँ? द आंसर इज़ नो. इस चीज़ को मैं लैक ऑफ हेट्रोजेनिटी कहूँगी. इसकी दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास बहुत ज़्यादा तादाद में नेटवर्क प्रोटोकॉल्स मौजूद हैं, बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल विंडोज़, लिनक्स, एंड्रॉयड. इसके अलावा मुख्तलिफ़ तरह की डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं. कुछ यूज़र ऐसे हैं जो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करेंगे, कुछ डेस्कटॉप को यूज़ करते हैं, कुछ लैपटॉप, टैब और मेन फ्रेम्स को यूज़ कर सकते हैं. तो मिडलवेयर का मकसद है कि जितनी भी हेट्रोजेनिटी है इसको ख़त्म करना, इससे एसोसिएटेड जो कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट होगी उसको हाइड करना. सो इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन लो लेवल ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेशंस एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एब्स्ट्रैक्शन. ऑपरेटिंग सिस्टम के लेयर में लो लेवल ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेशन मौजूद होगी और डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर बेस कर रही हैं. तो मिडलवेयर इसलिए इंट्रोड्यूस करवाई गई ताकि ये इन दोनों के दरमियान जो भी गैप है उसको कम कर दे. So summarizing, middleware is an intermediary application that enables the exchange of data between different software distributed applications.
To clarify the concept of middleware, here is an example. You have multiple disparate applications. For example, PDF, MS Word, MS PowerPoint, and you want all these softwares to communicate with each other. PDF जब कोई फाइल जनरेट करेगा उसकी एक्सटेंशन .pdf में फर्स्ट प्रायोरिटी यही होगी कि .pdf में जनरेट की जाए। MS वर्ड पे जब आप कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो वो डॉक की फॉर्म में जनरेट होता है, PPT में .ppt के नाम से। तो हम एक मिडलवेयर इस तरह से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं जो इन तीनों एप्लीकेशंस को सेम फॉर्मेट पर ट्रांसलेट कर दे। यानी अगर मैं एक मिडलवेयर इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ जो कि PDF को कन्वर्ट कर दे वर्ड पर, PPT को वर्ड में कन्वर्ट कर दे, तो अब ये तीनों सेम एक्सटेंशन पर आ गई हैं, तीनों एप्लीकेशंस, और ये आपस में एक दूसरे के साथ आसानी से कम्युनिकेट कर सकती हैं। So this is where middleware systems comes handy. We will discuss two middleware technologies. The first is remote procedure call or RPC. RPC को समझने के लिए एक एग्जाम्पल को स्टडी करना ज़रूरी है। आप देख रहे हैं कि एक प्रोग्राम दो कंप्यूटर सिस्टम पर इम्प्लीमेंट किया गया है। जब मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो ऐड पर आने के बाद ये एक दूसरे कंप्यूटर पर जहाँ इसका ये फंक्शन इम्प्लीमेंट हुआ है उसको पैरामीटर सेंड कर देगा। दूसरा कंप्यूटर सिस्टम ऐड का फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा और जो भी वैल्यू आएगी वो मेन कंप्यूटर को रिटर्न कर देगा। आपको देखने में ये बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन ये इतना आसान है नहीं। इसके पीछे नेटवर्किंग इन्वॉल्व होगी। नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसको बेस्ड ऑन रिमोट प्रोसीजर कॉल एंड मिडलवेयर एक्सप्लेन करूँगी, जहाँ आपको बेहतर तरीके से ये पता चलेगा कि जब दो कंप्यूटर सिस्टम जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जो कि अलग अलग फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे हैं, जब वो आपस में कम्युनिकेट करें तो उनकी कम्युनिकेशन आसान हो जाए। आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर एक कॉलर है जो कि क्लाइंट के तौर पर एक्ट कर रहा है। इसके पास एक कॉल का फंक्शन है, ठीक है, और ये जो फंक्शन कॉल कर रहा है ये रिमोटली किसी और जगह पर मौजूद है। लेट्स से हम इसको y का नाम दे देते हैं। कॉलर को मैं x कह रही हूँ और रिमोट फंक्शन को मैं y कह देती हूँ। अब अगर हम कॉलर और रिमोट फंक्शन के साथ RP सर्विस यानी जो कि एक तरह का मिडलवेयर है उसे इंट्रोड्यूस करवा देंगे तो इन दोनों फंक्शंस को कम्युनिकेट करना आसान हो जाएगा। कैसे होगा? कॉलर ने कॉल का फंक्शन इनिशिएट किया। RPC सर्विस जो कि कॉलर साइड पर है या जो क्लाइंट साइड पर है, सबसे पहले वो इन आर्ग्यूमेंट्स को मार्शल करेगी, उसकी ID जनरेट करेगी, एक टाइमर स्टार्ट करेगी। ये सब तीनों काम करने के बाद ये मैसेज सर्वर साइड की RPC सर्विस को दिया जाएगा। सर्वर साइड पर जो RPC सर्विस है वो अनमार्शल का काम करेगी और एक रिकॉर्ड ID जनरेट करेगी। ये दोनों काम करने के बाद वो फन के फंक्शन पर आएगी और फन के फंक्शन से कोई भी वैल्यू गेट करेगी। इस वैल्यू को गेट करने के बाद जो सर्वर साइड पर जो सर्विस है RPC की वो इसको मार्शल करेगी, टाइमर सेट करेगी और इस मैसेज को वापस क्लाइंट साइड की RPC सर्विस को प्रोवाइड कर देगी। क्लाइंट साइड की जो RPC सर्विस है वो वैल्यू को रिटर्न करने से पहले अनमार्शल करेगी और एक्नॉलेज कर देगी कि ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो चुका है और कॉल को एक वैल्यू वापस मिल जाती है।
तो अब हम RPC को इम्प्लीमेंट कर चुके हैं बेस्ड ऑन मिडलवेयर टेक्नोलॉजी। इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा ये है कि जब भी हम रिमोट फंक्शंस को कॉल करते हैं तो वो बिल्कुल उसी तरह कॉल होंगे जिस तरह वो एक लोकल सिस्टम पर मौजूद हैं, एक ही सिस्टम पर मौजूद हैं। दूसरा, ये क्लाइंट सर्वर मॉडल को यूज़ करते हुए इम्प्लीमेंट किया गया है। क्लाइंट सर्वर हमारे पास ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चर मौजूद है, हमें स्क्रैच से कुछ नया बिल्ड नहीं करना पड़ा। और एक और बात यहाँ लिखी है कि रिक्वेस्ट रिप्लाई पैराडाइम यूजुअली इम्प्लीमेंटेड विद मैसेज पासिंग। ये आप लोग देख रहे हो कि जब क्लाइंट से सर्वर की तरफ आएगा मैसेज, तो मैसेज पासिंग के थ्रू ये कम्युनिकेट कर रहे हैं, और सर्वर साइड से क्लाइंट साइड की तरफ जो मैसेज आ रहा है वो भी मैसेज पासिंग के थ्रू इम्प्लीमेंट किया गया है। So here comes the properties of remote procedure call. The very first property is it is language level pattern of function call. रिमोट प्रोसीजर कॉल में हम सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस कॉल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग सम लैंग्वेज। C++ हो सकती है, जावा हो सकती है, या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है। एंड अदर प्रॉपर्टी इज इट इज सिंक्रोनस रिक्वेस्ट रिप्लाई इंटरेक्शन, यानी एक रिक्वेस्ट क्लाइंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती है और सर्वर उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के बाद क्लाइंट को रिटर्न कर देता है। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत नेचुरल फिनोमिना है। और एक और पॉइंट यहाँ पर लिखा है, इट मैचेस रिप्लाईज टू रिक्वेस्ट, यानी ऐसा नहीं होता कि क्लाइंट ने कुछ और रिक्वेस्ट की हो और उसे उसके बदले में कुछ रिप्लाई डिफरेंट मिल रहा हो। क्लाइंट जो भी रिक्वेस्ट करेगा उसकी कॉरिस्पॉन्डिंग उससे कोई ना कोई रिप्लाई दिया जाता है। एंड देन कम्स डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसपेरेंसी। इसका मतलब ये है कि एक्स या जो मेरा कॉलर है उसे नहीं पता कि मैं जब कोई एक रिमोट फंक्शन को कॉल कर रही हूँ तो वो किस जगह पर मौजूद है, वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। मुझे डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर नहीं होगी। तो आपका जो रिमोट प्रोसीजर कॉल है वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपेरेंसी को अचीव करता है, और इसको अचीव करने के बाद जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो हाइड हो जाएगी। Also, there are few disadvantages of remote procedure call. The first disadvantage is synchronous request reply interaction. अगर तो सिंगल थ्रेडेड है क्लाइंट आपका, तब सर्वर पर कोई लोड नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका क्लाइंट मल्टी थ्रेडेड है तो सर्वर पर लोड इंक्रीज हो जाएगा और एक क्लाइंट सर्वर को काफ़ी टाइम तक ब्लॉक कर सकता है, या आप कह लो कि इंगेज कर सकता है। सो दिस रिप्रेजेंट्स अ टाइट कपलिंग बिटवीन योर क्लाइंट एंड सर्वर। तो सिंक्रोनस रिक्वेस्ट रिप्लाई जहाँ पर इसका एक फीचर था, वहाँ पर दूसरे एंड पे एक डिसएडवांटेज भी है। इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज दैट इट इज़ नॉट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करता है। अगर हम आज के टाइम पे देखें तो सब चीज़ें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हैं। तो इसके ऑब्जेक्ट ना ओरिएंटेड ना होने की वजह से हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मिडलवेयर की ज़रूरत पेश आई। So we will study object oriented middleware in this section. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मिडलवेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो इस बात पे बेस कर रहा है कि अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ रिमोटली आप फंक्शंस कॉल नहीं कर सकते, आप ऑब्जेक्ट्स को कॉल कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स में मेथड्स, फंक्शंस, वेरिएबल, एट्रीब्यूट सब इन्वॉल्व होंगे। यहाँ पर इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होंगे जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा है, ऑब्जेक्ट्स कैन बी लोकल और रिमोट,
दो तरह के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, वो लोकली किसी सिस्टम पर भी स्टोर हो सकते हैं और वो किसी दूसरे सिस्टम पर भी मौजूद हो सकते हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में होता है। अगर तो आपके ऑब्जेक्ट्स रिमोट होंगे तो उनको उनकी विजिबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास रिमोट इंटरफेसेस मौजूद होंगी। It masks remote object as being local using proxy objects। तो होता क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मिडलवेयर में कि ये रिमोट ऑब्जेक्ट्स को इस तरह से एक्सेस करता है जैसे कि लोकल ऑब्जेक्ट्स हों। और ये किस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए किया जाता है, ये प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करने के बाद किया जाता है। जैसे आप ये नीचे एग्जांपल में देख रहे हो, ऑब्जेक्ट ए लोकल है और ऑब्जेक्ट बी रिमोट है। ऑब्जेक्ट ए को रिमोट ऑब्जेक्ट बी एक्सेस करना है, तो सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट बी की प्रॉक्सी को क्रिएट करेगा। ऑब्जेक्ट बी की प्रॉक्सी क्रिएट करने के बाद ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मिडलवेयर पर एक ब्रोकर पड़ा है, उसको रिक्वेस्ट पास करता है। अब यहाँ पर दो ब्रोकर्स हैं, एक ब्रोकर लोकल ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड है और दूसरा ब्रोकर कनेक्टेड है आपके रिमोट ऑब्जेक्ट के साथ। लोकल का ब्रोकर रिमोट ऑब्जेक्ट को रिक्वेस्ट पास करेगा कि मेरे पास प्रॉक्सी मौजूद है ऑब्जेक्ट बी के लिए, काइंडली मुझे ऑब्जेक्ट बी प्रोवाइड कर दिया जाए। ये ब्रोकर रिमोट ऑब्जेक्ट के पास आएगा, उसे प्रॉक्सी देगा और ऑब्जेक्ट बी एक्सेस करने के बाद रिटर्न पाथ पर उसे ऑब्जेक्ट ए को प्रोवाइड कर देगा। तो ये वर्किंग है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मिडलवेयर की। Now it's time to study the properties of object-oriented middleware। सबसे पहली बात, और जैसा कि इसके नाम से भी रिप्रेजेंट हो रहा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मिडलवेयर प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल को सपोर्ट करेगा। जितने भी कॉन्सेप्ट्स वहाँ इन्वॉल्व होते हैं वो सब के सब हम यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम यहाँ ऑब्जेक्ट्स कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, उनके मेथड्स, उनकी इंटरफेसेस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब कॉन्सेप्ट यहाँ पर आएंगे। The next point is it is also a synchronous request reply interaction। जिस तरह हमने रिमोट प्रोसीजर कॉल में पढ़ा था कि क्लाइंट रिक्वेस्ट देता है और सर्वर उस रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करेगा, बिल्कुल उसी तरह जो आपका लोकल ऑब्जेक्ट है वो एक रिक्वेस्ट पास करेगा और रिमोट ऑब्जेक्ट उस रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करेगा। तो ये भी एक रिक्वेस्ट रिप्लाई इंटरेक्शन है। हमने आरपीसी में स्टडी किया था कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम दो जगहों पर मौजूद हैं और उसको ये बात पता नहीं चलती कि आपका डाटा किस जगह से एक्सेस हो रहा है, और वो आपको बिल्कुल उसी तरह मिलेगा जिस तरह एक लोकल सिस्टम से मिलता है। जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मिडलवेयर की बात करते हैं तो यहाँ पर लोकेशन ट्रांसपेरेंसी है, जिसका मतलब ये है कि आपका सिस्टम ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस को मैप कर देता है लोकेशन पर, ठीक है। डिफरेंट लोकेशंस पर आपके ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस मैप हुए होंगे, जैसा कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में भी देखते हो। नाउ इट्स टाइम टू स्टडी वन ऑफ द आर्किटेक्चर स्टाइल जो कि मिडलवेयर टेक्नोलॉजी पर इम्प्लीमेंट किया जाता है, कोरबा। कोरबा स्टैंड्स फॉर कॉमन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर आर्किटेक्चर। ये एक ओपन स्टैंडर्ड है OMG का, ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप का। इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये लैंग्वेज और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। अगर मुख्तलिफ एप्लीकेशन डिफरेंट लैंग्वेजेस पर इम्प्लीमेंट की गई हैं या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर इम्प्लीमेंट की गई हैं तो कोरबा की वजह से एक सेम प्लेटफॉर्म या सेम लैंग्वेज उन सबको प्रोवाइड कर दी जाती है, वो आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं। Another point is it is distributed object based system which provides interoperability। इसका मतलब ये है कि ये आपकी दोनों कॉन्सेप्ट्स को फॉलो कर रहा है, ये और डिस्ट्रीब्यूटेड भी है
और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की कैटेगरी में चूँकि लाई कर रहा है इसलिए ये ऑब्जेक्ट बेस्ड सिस्टम है। और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है इंटरऑपरेबिलिटी प्रोवाइड करना। इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब ये है कि दो सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कर सकें, दो सिस्टम आपस में किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के कैपेबल हों। तो ये एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट बेस्ड सिस्टम है जो कि इंटरऑपरेबिलिटी प्रोवाइड करता है बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। इट इज़ अ मिडलवेयर टेक्नोलॉजी। चूँकि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मिडलवेयर की बात कर रहे हैं तो उसकी बेस पर जो भी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कोरबा, ऑब्वियसली ये एक मिडलवेयर टेक्नोलॉजी है। और चूँकि ये मिडलवेयर टेक्नोलॉजी है इस वजह से ये दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाता है। और वो दो ऑब्जेक्ट्स किस तरह के होंगे? वो दो ऑब्जेक्ट्स हेट्रोजीनियस होंगे। हेट्रोजीनियस का मतलब ये है कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ तो जावा में अरे आपकी एक तरह का डाटा स्टोर करवाती है, या तो वो नंबर की फॉर्म में होगा या वो स्ट्रिंग्स की फॉर्म में होगा। लेकिन अगर मैं जावा स्क्रिप्ट की बात करूँ तो जावा स्क्रिप्ट में आपकी अरे या तो उसके पास वो आपको ऑप्शन देगी, आप नंबर की फॉर्म में भी डाटा स्टोर कर सकते हैं उसमें और स्ट्रिंग्स की फॉर्म में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों लैंग्वेजेस आपके डिफरेंट तरह के हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट्स को सपोर्ट कर रही हैं। कोरबा तीन तरह के लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन C++, इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन कोबोल और जावा लैंग्वेज। अब हम ये देखेंगे कि कोरबा के कितने कंपोनेंट्स हैं जो मिलकर इसकी फंक्शनैलिटी को कंप्लीट करते हैं। तो जो पहला कंपोनेंट है डेट इज़ ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर। ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर के अंदर कितनी फंक्शनैलिटीज़ अवेलेबल हैं? सबसे पहले एक प्रोटोकॉल मौजूद है कम्युनिकेशन के लिए। हम इस प्रोटोकॉल को स्टडी नहीं कर रहे। ये जनरल इंटर ORB प्रोटोकॉल है जो कि दो हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट को कम्युनिकेट करवाने का कैपेबल है। आपके लिए अभी इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। द नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ इंटरऑपरेबल ऑब्जेक्ट रेफरेंस कंटेन ऑब्जेक्ट लोकेशन। जिस तरह हमने ये बात पहले भी डिस्कस की थी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर लोकेशन ट्रांसपेरेंसी होती है, यानी आपके ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट लोकेशंस पर मैप कर दिए जाते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट कोरबा में भी अप्लाई हो रहा है। इसके अलावा जो आपका ब्रोकर है वो एक इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज प्रोवाइड कर रहा है, यानी दो ऑब्जेक्ट्स अगर आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं तो वो IDL को यूज़ करते हुए कम्युनिकेट करेंगे, जो वो IDL आपके ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर को प्रोवाइड की गई है। देन कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टब्स एंड स्केलेटन। स्टब्स एंड स्केलेटन का मतलब ये है कि स्टब्स आपके क्लाइंट साइड पर इम्प्लीमेंट होते हैं, वो आपकी क्लाइंट की जितनी फंक्शनैलिटी है उसको रूट करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। और स्केलेटन सर्वर साइड पर इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। सर्वर की जितनी भी फंक्शनैलिटी है वो स्केलेटन से राउट होगी। और स्टब और स्केलेटन क्रिएट किसके थ्रू किए जाते हैं? एक IDL का कंपाइलर है जो कि स्टब और स्केलेटन को क्रिएट करता है। देन कम्स द डायनामिक रिमोट मेथड इन्वोकेशन। जब भी हमें किसी मेथड को कॉल करना होगा तो हम उसे डायनामिकली या रिमोटली कॉल करते हैं। हमने ब्रोकर की तमाम फंक्शनैलिटी को यहाँ पे स्टडी किया। ब्रोकर में कितने कॉन्सेप्ट्स थे? IDL है, प्रोटोकॉल है, रेफरेंसेस हैं, स्टब्स एंड स्केलेटन हैं और मेथड इन्वोकेशन है। इसके अलावा कोरबा में इंटरफेस रिपोजिटरी मौजूद होती है जो कि इंटरफेस से रिलेटेड जितने कंपोनेंट हैं, इंटरफेस एक ही यूज़ हो रही है ना IDL, इंटरफेस से रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो सब के सब इंटरफेस रिपोजिटरी में स्टोर किए जाते हैं। और एक और रिपोजिटरी कोरबा में मौजूद है, इट इज़ इम्प्लीमेंटेशन रिपोजिटरी। आपके सर्वर्स की जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल है
वो कोरबा की इम्प्लीमेंटेशन रिपोजिटरी में मौजूद होगी। So here is an example of how Corba works. आप देख रहे हो कि एक क्लाइंट है यहाँ पर जिसमें मेन का फंक्शन है, ठीक है। मेन का फंक्शन क्लाइंट साइड पर एक स्टब क्रिएट किया आइडियल कंपाइलर ने, उसके थ्रू रूट होगा, ठीक है। और रूट होने के बाद ये आएगा ORB पे, जो ब्रोकर है हमारे पास कोरबा का, उस पे ये मैसेज आ जाएगा। अब क्लाइंट साइड का जो ORB है वो कम्युनिकेट करता है सर्वर साइड के ORB के साथ, और इस ORB की कम्युनिकेशन पॉसिबल है IIOP के थ्रू, डैट इज इंटरनेट इंटर ORB प्रोटोकॉल, जो इन दोनों को कम्युनिकेट करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सर्वर साइड के ORB पे जब रिक्वेस्ट आ जाती है तो वो इस रिक्वेस्ट को स्केलेटन के थ्रू राउट करेगा और ऐड का फंक्शन यहाँ पर कॉल होगा। ऐड का फंक्शन एग्जीक्यूट किया जाएगा और उसकी जो भी वैल्यू रिटर्न होगी वो रिटर्न पाथ पर क्लाइंट को प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा कि कोरबा में क्लाइंट और सर्वर किस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्लाइंट और सर्वर लिखने का मकसद ये है कि ये भी एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, बट नाउ इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स। कोरबा की आइडियल इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसकी कुछ चीज़ें हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। आपकी जो कोरबा आइडियल है दैट मैप्स और सपोर्ट्स डिफरेंट लैंग्वेजेस इन डिफरेंट एप्लीकेशंस। फॉर एग्जांपल ये C++, जावा, स्मॉल टॉक, इस तरह की मुख्तलिफ एप्लीकेशंस को मैप करने के लिए एक इंटरफेस प्रोवाइड करती है, ठीक है। आपकी जो भी लैंग्वेज है, कमिंग लैंग्वेज, वो आइडियल कंपाइलर के थ्रू ट्रांसलेट हो जाएगी, सेम फॉर्मेट में आ जाएगी। इस पे मुख्तलिफ तरह की टाइप्स फैसिलिटेट की जाती हैं, बेसिक टाइप भी हो सकती हैं और कंस्ट्रक्टेड टाइप भी हो सकती हैं। देन जो कोरबा की इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज है, इसमें पैरामीटर पासिंग का कॉन्सेप्ट भी है, इन आउट या फिर पास्ड बाय वैल्यू, पास्ड बाय रेफरेंस, ये तमाम तरह के पैरामीटर्स आइडियल के थ्रू सपोर्ट किए जाते हैं। अगर आप लास्ट एग्जाम्पल को एक बार दोबारा देखें तो वहाँ आपको क्लाइंट के मेन और सर्वर साइड पर जो ऐड का फंक्शन है उसके दरमियान एक आइडियल की लाइन नज़र आएगी। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स बेसिकली कम्युनिकेट कर रहे हैं यूजिंग इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज। और यहाँ पर आइडियल के हवाले से जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं, दीज कॉन्सेप्ट्स आर बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को ग्रास्प नहीं कर पा रहे फ़िलहाल, तो आप अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स को ज़रा रिवाइज कर लीजिएगा। So in this lecture we have studied the introduction of middleware and covered two middleware technologies. First is RPC and second is Corba. I will give you an assignment of this middleware technology. I hope then the concepts will be more clear to you. That's all for today. Thank you for listening.